सुंदर गोपाल प्रभु जी का। प्रभु जी के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है, लेकिन मैं बहुत ही कम शब्दों में इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हिजबे सुंदर गोपाल प्रभु का। हिजबे सुंदर गोपाल प्रभु इज द चेयरमैन ऑफ इस्कॉन इंडिया यूथ काउंसिल और फिलहाल वो इस्कॉन के जोनल सुपरवाइजर भी हैं वेस्टर्न यूपी में और सेंट्रल बिहार में। Prabhu ji has done his MTech from IIT Delhi and he has been a gold medalist in the year 2004. Then he worked as an engineer in L&T for 3 years, from 2004 to 2007 as a manager, as an engineer और अपने कार्यकाल में उन्होंने बैंगलोर एयरपोर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। तो एक बार जोर से हिजबे सुंदर गोपाल प्रभु जी का आप सभी लोगों से निवेदन है एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। तो एक बार प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी ने बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही प्रैक्टिकल चीजों को आप लोगों के सामने लेकर आए और आप जितने भी यहाँ पर भक्त देख रहे हैं, जितने भी यहाँ पर डिवोटीज को देख रहे हैं, इन सब चीज के पीछे प्रभु जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज से जब मुझे याद है तो मैं 10 वर्ष पहले एज ए स्टूडेंट था, आई वाज अ वेरी ऑर्डिनरी स्टूडेंट, ऐसे आम आदमी जैसे होता है भक्त होता है। उसी वक्त में प्रभु जी के योगदान से आज मैं लगभग 20,000 बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करवाता हूँ और जितने भी पूरे भारतवर्ष में ऑल इंडिया रैंक 1 IAS IPS और IAS ऑफिसर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं भगवान श्री हरि की कृपा से मेरे पढ़ाई में होते हैं। तो ये सब और मुझे ये मौका बहुत 10 वर्षों के बाद मिला कि मैं प्रभु जी के साथ रहकर साथ खड़े होकर इस बात को बताने का मुझे बताना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ। तो बस जितना भी मैं बोलता हूँ बहुत काम है, तो बस भगवत प्रणाम करूँ। And someone asked me, sir, today is not Janmashtami. In fact, today also there is not Janmashtami, and we are here for Janmashtami. Am I right? So, there is no Janmashtami, still we are here to celebrate Janmashtami. Do you want to know the answer? Why? Do you want to know the answer? Great. So, to answer this question, let me ask you another question. How many universes are there? How many universes? Right? We didn't know that. First time we sent some telescope called Hubble telescope. Hubble telescope. So this Hubble telescope, it was sending some black and white images, and the resolution was not that great. So recently, in fact, this Hubble telescope created more questions than answers. Now, this last year, December 2021, we sent another telescope that's called James Webb Telescope. Right? Now, this is sending colorful images with high resolution, but again, many questions is created. We are still not able to understand how many universes are there. They say that number of planets are like millions. I know they are. What is the distance of different planets? So they are always taught in terms of light years, right? Million, XYZ, million, billion, light years distance, right? So one thing we understand that there are millions and trillions of universes, right? And Krishna's pastime is called eternal pastime. Now, what this means by eternal is that every moment Krishna is feeling Manta somewhere. Every moment Krishna is feeling Indra somewhere. In the same way, Krishna is taking birth in one of these universes right now. So we should celebrate Janmashtami every day.
not every day, every moment. But is that possible? Is that possible to do? No. So we celebrate once in a year, and we are very, very thankful to Prabhuji for taking out time, coming here, and giving this opportunity. So Krishna is taking every moment in this universe or in different universes. Now, we request Prabhuji that by his seat, kirtan and lecture, make that Krishna appear in our heart too. So, this is what I'll stop here. Thank you, Prabhuji. Welcome you to IIT. Thank you. Hare Krishna. Can you all hear me? Not? So we need little adjustment in the mic. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Am I audible? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा Someone should sing from behind with the mic. Someone has to follow. किसी को पीछे से गाना पड़ेगा. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
भगवते वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो आज दो महत्वपूर्ण दिन है। Should I speak in Hindi or English? Which language? हिंदी है? हिंदी ठीक रहेगा? सब लोग समझ जाएंगे हिंदी? ओके, बहुत अच्छा। आज बहुत खुशी का दिन है। सबसे पहले तो आज स्वतंत्रता दिवस है और इसलिए आप सब उपस्थित यहाँ पे जितने व्यक्तित्व है, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। भारत हमारा देश आज के दिन माना जाता है कि आज़ाद हुआ और इसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इस साल विशेष है क्योंकि 75 साल हो चुके है ना। 75 वर्ष और 25 साल के बाद फिर हम लोग शताब्दी मनाएंगे, शताब्दी। इसलिए इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है उसको विशेष नाम दिया गया अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव। अमृत का अर्थ क्या है? अमृत मतलब जो कभी नष्ट ना हो, उसको बोलते हैं अमृत। जो कभी समाप्त ना हो। एक होता है मृत और एक होता है अमृत। मृत का अर्थ क्या है? मरा हुआ है ना, जो मर जाए, जिसका मृत्यु होना है उसको बोलते हैं मृत। जिसका एक दिन समाप्ति हो जाएगा उसको कहते हैं मृत। क्या ऐसा चीज है जो समाप्त हो जाता है और क्या ऐसा चीज जो कभी समाप्त नहीं होता है? इस संसार में हर वस्तु समाप्त हो जाता है कि नहीं? आज से 60 वर्ष पहले अगर कोई यहाँ आता इस स्थान पे 60-70 साल 75 साल पहले, 75 साल पहले यहाँ पे IIT नहीं था, है ना? था या नहीं था? नहीं था। स्थान था लेकिन IIT नहीं था। कुछ और होगा, लेकिन जो भी पहले था वो हट गया और IIT आ गया, है ना? एक काल परिवर्तन करता है संसार में, इसलिए मृत बोलते हैं उसको। और वो हर वस्तु जो है इस संसार में एक दिन नष्ट हो जाता है। इसके विपरीत एक अमृत होता है, अमृत। मृत और अमृत। तो अमृत क्या है? जो कभी नष्ट ना हो। तो क्या है ऐसा जो कभी नष्ट नहीं होता है, जो कभी जिसका न जन्म हो न मृत्यु हो, neither created nor destroyed? क्या है वो? है? What is that? जो कि neither created nor destroyed. What is that? Energy. क्या? Energy. It is ever existing. हमेशा पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। एनर्जी, इसको बोलते एनर्जी।
एनर्जी को किसने देखा है? किसी ने देखा है? इसका कोई फोटो खींच के ला सकते हैं? एनर्जी का फोटो, वीडियो? नहीं। एनर्जी अपने आप में एक रहस्य है। एनर्जी रूप बदलता है, चेंजेस फॉर्म, है ना? एनर्जी समथिंग विच चेंजेस फॉर्म, बट you cannot create it, you cannot destroy it, simply changes form. तो एक एनर्जी जो है, ऊर्जा, वो क्या है? वही जो है अमृत है। क्या है? अमृत। एक ही चीज है जो अमृत नहीं होता, वो है एनर्जी। और एनर्जी का सोर्स क्या है ना? ऐसा बताया गया, एनर्जी का सोर्स है क्या? गीता, भगवत गीता में क्या बताया गया? एनर्जी का सोर्स कौन बताया? गीता कितने लोगों ने पढ़ा है? भगवत गीता कितने लोगों ने पढ़ा है? हाँ बताइए। ओके, चलिए, अच्छी बात है। तो एनर्जी का सोर्स भगवान गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। क्या बताते हैं? अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव संगेन। चैप्टर 10 टेक्स्ट 8, 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि तुम जो कुछ भी संसार में देखते हो वो सब का स्रोत मैं हूँ। अहम सर्वस्य प्रभव, प्रभव मतलब स्रोत, सोर्स ऑफ एवरीथिंग। कृष्ण बोलते हैं आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे निकलता है। एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। तो जो व्यक्ति इस बात को जानता है, इति मतलब मानता है, जानता है और मानता है, जानने और मानने में अंतर है। तो क्या करता है? वो मेरी भक्ति करता है, भजन्ते माम। जो जानता है कि सारी सृष्टि का स्रोत मैं हूँ। कृष्ण कहते हैं कि मुझसे सारी सृष्टि प्रकट होती है। हम सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव संबंधिता। भगवान श्री कृष्ण गीता में अपने बारे में स्वयं सूचना देते हैं, अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या कहते हैं भगवान? हे अर्जुन, गीता के 4थे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुमको जो ये गीता का ज्ञान देने जा रहा हूँ, ये ज्ञान मैंने लाखों वर्ष पहले यही ज्ञान मैंने सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था। विवस्वान कब दिया था? लाखों वर्ष पहले। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा कृष्ण से, कृष्ण आपकी उम्र होगी यही सब 90-100 साल। आपकी उम्र कितनी है? 90 और 100 साल है। महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण की उम्र कितनी थी? 100 साल, 100 वर्ष की उम्र थी। हालांकि ये बात अलग है कि उनका कभी दाढ़ी मूंछ नहीं आया, भगवान है। तो अर्जुन ने पूछा कि 100 साल की आप उम्र है और आप कह रहे हो कि लाखों वर्ष पहले आपने ये ज्ञान सूर्य के देवता विवस्वान को दिया, ये कैसे मैं समझ सकता हूँ? इसको कैसे समझूं? कोई व्यक्ति की उम्र है मान लीजिए 25 साल और बोले 200 साल पहले मैं IIT में पढ़ाया करता था,
तो क्वेश्चन उठेगा ना तो भाई 25 साल की उम्र 200 साल पहले तुमने कैसे पढ़ाया। तो इसी तरह से प्रश्न पूछा अर्जुन ने। और चैप्टर गीता के 4थे अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि मैं ये कैसे समझूं। आप बता रहे हैं कि लाखों वर्ष पहले आपने ये गीता का ज्ञान जो आप मुझे दे रहे हैं, आपने सूर्य के देवता विवस्वान को दिया, मैं इस बात को कैसे समझूं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे अर्जुन, तुम्हारे भी बहुत जन्म हो चुके हैं और मेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं। मैंने भी बहुत बार इस संसार में जो अवतार लिया, तुमने भी बहुत बार संसार में अवतार लिया, लेकिन तुम में और मुझ में एक अंतर है। क्या अंतर है? तुम्हें अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता, मेरे सारे पिछले जन्म याद, मुझे सब कुछ याद रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बहुत पहले मैंने अवतार लिया था और अवतार लेकर मैंने ये ज्ञान प्रदान किया। अर्जुन ने पूछा आप अवतार क्यों लिए थे, क्यों अवतार लेते हैं आप? भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य, थोड़ा सा साउंड ठीक कीजिए, बुझ रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। हे भारत, हे भारत, जब भी ऐसा समय आता है कि धर्म की ग्लानि होती है, क्या होती है? धर्म की ग्लानि होती है। धर्म का जो क्या बोलते हैं उसको, थर्मोमीटर या थर्मोमीटर जो का पारा जब नीचे चला जाता है, थर्मोमीटर तो आप लोग जानते हैं, थर्मोमीटर नहीं जानते। थर्मोमीटर भी एक बनाना चाहिए, उसे पता चल जाए कि जीभ में लगा के, यहाँ लगा के चेक किया इसका धर्म का मीटर का पारा कितना। जरूरी है कि नहीं है? क्या ज्यादा जरूरी है, थर्मोमीटर या थर्मोमीटर? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं बीच बीच में थर्मोमीटर से चेक करता रहता हूँ कि संसार का धर्म का स्टैंडर्ड क्या चल रहा है? धर्म ज्यादा बढ़ गया या कम हो गया, या अधर्म बढ़ गया या धर्म बढ़ गया। और जब लगता है कि नहीं एक लेवल से ज्यादा नीचे जा रहा है धर्म, और इससे पृथ्वी का जिस पर्पस के लिए मैंने सृष्टि बनाई है वो पर्पस अचीव नहीं हो रहा है, तो फिर मुझे आना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मुझे आना पड़ता है। तो यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत, हे भारत, जब धर्म की ग्लानि हो जाती है तो क्या होता है? अभ्युत्थानम धर्म अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो मैं अधर्म को नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए फिर से प्रकट होता है, बार बार प्रकट होता हूँ, है ना? बार बार प्रकट होता है। तो भगवान अवतार लेते हैं संसार में। किस लिए अवतार लेते हैं? किस लिए अवतार लेते हैं? धर्म की स्थापना के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय। क्या? धर्म संस्थापनार्थाय, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय आय मतलब के लिए। संस्कृत भाषा है, क्योंकि आज ज्यादातर लोग संस्कृत नहीं जानते थे, इसलिए एक पैटर्न है इसमें। आय विनाशाय परित्राणाय संस्थापनार्थाय, तो ये पैटर्न है। क्या कहते भगवान? के लिए। किसके लिए आप अवतार लेते हैं? परित्राणाय, अच्छे लोगों को की सुरक्षा,
सज्जनों की सुरक्षा, जो अच्छे लोग हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनका विश्वास कहीं टूट न जाए सत्य में जयते में। जब अधर्म का बोलबाला हो जाएगा, चारों तरफ अधर्म जीतने लगेगा, असत्य का जीतने लगेगा, अन्याय जीतने लगेगा, तो जो सत्य के मार्ग पे चलते हैं उनका साहस खत्म हो जाएगा, उनका धैर्य टूट जाएगा, वो भी सत्य का रास्ता छोड़ के कहीं असत्य की तरफ ना चले जाए। इसकी चिंता रहती है भगवान की। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों के सत्य की रक्षा करने के लिए, उनके ईमान की रक्षा करने के लिए, उनके धर्म की रक्षा करने के लिए, उनके विश्वास की रक्षा करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ, प्रकट होता हूँ इस संसार में। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। और दोनों जरूरी है। जब तक दुष्टों का विनाश नहीं होगा तब तक सत्य की स्थापना नहीं हो सकती है। दोनों पैरेलली जरूरी है। इसलिए विनाशाय च दुष्कृतां। दुष्कृतां का मतलब है वो लोग जो मिसक्रिएंट्स हैं, जो मिसक्रिएटर क्रिएशन करते हैं। एक तो कुछ लोग क्रिएशन करते हैं, कुछ लोग डिस्ट्रक्शन करते हैं। Their whole day busy for destruction, है कि नहीं? They are very active, very busy, 24 hours thinking, 24 घंटे सोचते रहते कैसे डिस्ट्रक्शन किया जाए, कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, है ना? They are using all high-tech gadgets, है ना? How to destroy the world, isn't it? So they have developed big, you know, powerful weapons to destroy the world. So there is threat. तो भगवान कहते हैं कि दुष्टों का विनाश करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ। संभवामि जुगे जुगे, जुगे जुगे, अलग अलग समय पर मैं अवतार लेता हूँ। तो अर्जुन ने कहा, अच्छा मैं कैसे समझूं कि आप भगवान है, आप अवतार लेते हैं? बातें होती जाती है, बहुत प्रश्न होते हैं। अंत में अर्जुन को समझ में आ जाता है कि कृष्ण कौन है, भगवान है। तो 10वें अध्याय जाते जाते अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि मैं कैसे समझूं कि सारी सृष्टि आपने प्रकट की है, आप बताइए, मुझे प्रूफ चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते, मैं तुम्हें अपना विश्व रूप दिखाऊंगा। क्या बोलते हैं? विराट विश्व रूप, कैसे मैं सारी सृष्टि को धारण करता हूँ। अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया कि मैं आपके रूप को देखना चाहता हूँ, कैसे सारी सृष्टि को आप चलाते हो, कैसे सब कुछ चलाते हो, कैसे आप धारण करते हो। 10वें अध्याय में भगवान ने बताया कि मैं हर चीज को मैं चला रहा हूँ। हम सब रिसर्च करते हैं, नाना प्रकार के अनुसंधान करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, है कि नहीं? लेकिन ये सब करने के लिए हमारे को ब्रेन चाहिए। क्या चाहिए? ब्रेन चाहिए। हम सब कुछ बनाते हैं लेकिन हम अपना ब्रेन नहीं बनाते, है कि नहीं? ब्रेन से सब कुछ बनाते हैं लेकिन ये ब्रेन कौन बनाता है ना? क्योंकि अगर ये ब्रेन ना हो तो बाकी सब कैसे बनाएंगे, हम बताइए। तो मास्टर टेक्नोलॉजी, सुपर टेक्नोक्रेट इज द गॉड हु क्रिएट्स आवर ब्रेन। हमारी ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है? बताते हैं कि एक ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी इतनी है कि संसार के जितने लाइब्रेरी हैं, उन सारी लाइब्रेरी की जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन एक ब्रेन के अंदर आ सकती है। इतनी कैपेसिटी है ब्रेन की, ह्यूमन ब्रेन की। तो जिसने इस ह्यूमन ब्रेन को बनाया उसको कितना पैसा देना चाहिए, बताइए? कितना पैसा देंगे आप, बताइए कितना? बताते हैं हमारे ब्रेन में
There are 1 trillion brain cells, and each cell is more powerful than this modern supercomputer. देखिए 1 ट्रिलियन सुपर कंप्यूटर्स लगे हुए हैं हमारे अंदर, हमारी एक्टिविटी को गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए। इतना पावरफुल मशीनरी किसने बनाया? हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस? दैट इज द क्वेश्चन। तो कौन बनाया ये मनुष्य? हमारा ब्रेन किसने बनाया? ये आंखें किसने बनाई? तो कृष्ण बताते हैं कि मैंने बनाया। I create the whole world. तो भगवान को हम कितना देना चाहिए बताइए? क्या देना चाहिए हमको? कितना GST देना चाहिए? तो भगवान से एक भक्त ने पूछा कि प्रभु आपने इतना कुछ कर दिया तो हम क्या करें आपके लिए? बोले जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर लिया करो। और कुछ ज्यादा नहीं चाहता हूँ, ठीक है। बीच बीच में हमारा आता है साल में एक बार, तो थोड़ा सेलिब्रेट करो, मनाया करो, है कि नहीं? क्या ख्याल है, मनाना चाहिए है? तो भगवान की बात IIT वालों ने सुन लिया। IIT के महान बुद्धिमान व्यक्तियों ने इस बात को समझा, है ना, कि जिन्होंने हमको सब कुछ दिया उनको कम से कम उनके जन्मदिन पर हम क्या करें? याद करें, धन्यवाद दें, है ना। भगवान हमको इतना कुछ देते हैं, इतना कुछ दिए, इतने दयालु है, इतने कृपालु है, सब कुछ देते हैं। अब देखो, हमको जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, जिसके बिना आप 5 मिनट नहीं जी सकते? क्या है? ऑक्सीजन। कोरोना पीरियड में आपने देखा होगा ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस, लेकिन सरकार के सारे तंत्र फेल हो गए थे, ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी, हाहाकार मच गया था। भगवान ने थोड़े समय के लिए रियलाइज कराया कि देखो मैं तुमको फ्री में देता हूँ ऑक्सीजन, तुम लोग वैल्यू नहीं समझता है। अगर तुम्हें छोड़ दूंगा, व्यवस्था करना पड़ेगा, हाहाकार मच जाएगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी सरकार फेल हो जाएगी, विज्ञान फेल हो जाएगा। और इतना महंगा बिकता है ऑक्सीजन। जब लॉकडाउन के पीरियड में जब कोरोना आया था, आप देखें कितना कॉस्टली बिक रहा था, है कि नहीं? अब भगवान हमको 24 घंटे सप्लाई करते हैं फ्री में, है कि नहीं? लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं। हम सोचते हैं तो अपने आप हो रहा है, नहीं, एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय चांस, ऑटोमेटिकली हो रहा है हर चीज। तो हर चीज अपने आप हो रहा है, हम लोग अपने आप यहाँ पे आके बैठ गए, है कि नहीं? अपने आप यहाँ से चले जाएंगे बाई चांस, नहीं। अब बाई चांस जो है हम लोग जाएंगे पढ़ाई करेंगे, और बाई चांस कुछ लोग फेल हो जाएंगे, अब बाई चांस कुछ लोग पास हो जाएंगे, क्या ख्याल है? और बाई चांस कोई वैज्ञानिक बाई चांस थ्योरी दे देगा, बाई चांस नोबेल प्राइज मिला हमको। Doesn't make sense. If everything is happening by chance, then why do you need Nobel Prize? Let the credit go to by chance. But when I do something, I want credit, I want Nobel Prize. But when God does something, we say it is happening by chance. This is called ungrateful. Ungrateful. It cannot happen by chance. Even a child can say. एक बच्चा
से भी आप पूछेंगे तो कहेगा कि नहीं। ये बात अलग है कि जब हम पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हम भगवान फैक्टर को बाहर रखते हैं। भगवान फैक्टर को बाहर रख के हम पढ़ाई करें, रिसर्च करें, ऐसा होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। जब हम कार्य करते हैं तो भगवान को साइड करते हैं। हमारे गुरु जी बोलते थे कि जब तुम कोई काम करते हो, प्रयास करते हो, मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, तो इस तरह से करो कि मानो भगवान नहीं है। तुम्ही पे सब कुछ निर्भर है, तुम्ही को सब कुछ करना है। मेहनत करते समय ऐसा सोचो, लेकिन जब प्रार्थना करते हो, क्या जब प्रार्थना करने बैठ जाओ तो तुम सोचो कि सब कुछ भगवान पे निर्भर है, उनसे प्रार्थना करते हो, है ना? कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। हे प्रभु, जब हमारे हाथ से बाहर चीजें चली जाएं, मनुष्य की क्षमता से बाहर चीजें चली जाए, तो वहां पर मनुष्य के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सरेंडर करने के अलावा। मनुष्य अपनी असहाय अवस्था को महसूस करता है और वो इस बात को महसूस करता है कि हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। ग्रैटिट्यूड, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रैटिट्यूड। If you are not grateful, then you are grateful. So you must be grateful to God. भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। उनकी बनाई सृष्टि को हम यूज करते हैं और उनको भूल जाते हैं, ये कैसे संभव है? तो इसलिए जन्माष्टमी और ये जो अवसर है, दिव्य अवसर, भगवान कहते तो नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा होती रहती है कि सब लोग मेरे को याद करें, मुझे प्रेम करें, सब लोग मुझे क्या प्रेम करें। ना करें तो कोई बात नहीं, करे तो अच्छी बात। तो इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि मैं संसार में प्रकट धर्म की स्थापना के लिए। धर्म अधर्म बढ़ गया है, तो अगर आप देखो बीच बीच में अधर्म बढ़ जाता है। आज भी अधर्म बढ़ा हुआ है, अधर्म बढ़ा हुआ है। अधर्म का थर्मोमीटर ऊपर जा रहा है। समाज में धर्म की बहुत आवश्यकता है। भारतवर्ष जिसको कहा जाता था क्या, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। यहाँ सत्य अहिंसा नेम धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश था मेरा। है नहीं, है नहीं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया एशिया का नंबर 1 करप्ट देश है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सुबह के भाषण में इस बात को व्यक्त किया कि हमारी सबसे बड़ा चैलेंज अमृत काल के अमृत महोत्सव में सबसे बड़ा चैलेंज यही है, करप्शन, भ्रष्टाचार। वो देश जो सारे संसार को के लिए एक लैंडमार्क था, एक माइलस्टोन सेट करता था, हाई स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी, कैरेक्टर, आज उस देश की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। ये बड़ी चिंता की बात है। और करप्शन कौन करता है आप बताओ? पढ़ा लिखा व्यक्ति या अनपढ़ व्यक्ति? Who does corruption? इलिटरेट पर्सन करप्शन क्या करेगा? वो ज्यादा से ज्यादा चुराएगा तो दुकान से जाके 4-5 गुलाब जामुन चुराएगा। Corruption, most of the corruption is done by people who are educated.
एजुकेटेड पीपल, पढ़े लिखे लोग, क्या फायदा इतनी पढ़ाई का? अगर आपने इतनी पढ़ाई की और आप इतनी बात नहीं समझ पाए कि चोरी करना पाप है, आपने पीएचडी कर लिया, साइंटिस्ट बन गए, लेकिन आपने इतनी नहीं समझ पाए कि चोरी करना पाप है, गलत है, नहीं करना चाहिए, तो इतनी पढ़ाई का क्या लाभ? तो सबका तब वैल्यू है जब हमारे पास कैरेक्टर है, चरित्र है। इसलिए महात्मा गांधी जी कहा करते थे, इफ हेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। That is the foundation. That is the foundation. Lord Sri Krishna is the epitome of character. He is the emblem of character. ऐसा व्यक्ति चरित्र के लिए जाने जाते हैं, हाई लेवल कैरेक्टर। भगवान राम, भगवान कृष्ण के आचरण हम देखें तो बहुत हाई लेवल। कहते रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण चला जाए लेकिन जो मैंने संकल्प लिया वो संकल्प मेरा नष्ट नहीं हुआ, मेरी जान चली जाए कोई बात नहीं। ये नहीं कि संविधान पे हाथ रख के शपथ खाता हूँ, वचन लेता हूँ और बाद में प्राण वचन ही चला गया, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है उस वचन। सत्य अहिंसा नेम धर्म भारत था ऐसा देश जो इसके लिए फेमस था। लोग यहाँ पे आया करते थे, है ना, यहाँ पे सीखने के लिए। वो देश था भारत। इसलिए उस धर्म की स्थापना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर धर्म नष्ट हो गया तो बाकी सबका कोई अर्थ नहीं रहेगा। पिछले एक साल में भारत में 66 लाख क्राइम हुआ, 66 lakh crime in 1 year. It's a grave concern, alarming situation actually, very alarming. 66 लाख क्राइम कोई छोटा चीज नहीं होता। Do not ignore this. This is very 5 करोड़ केसेस अदालतों में पेंडिंग में है। हर साल 50 लाख ऐड हो जाता है। भारत के जेल हाउसफुल हैं। पूरे भारत में 4,70,000 कैदियों की कैपेसिटी की जेल है और आज के समय में 5,20,000 कैदी ऑलरेडी जेल के अंदर है। सोचिए, जबकि 5 करोड़ केस अदालत में पेंडिंग में है, जब उनको केस सॉल्व हो जाएंगे तो कितने करोड़ लोग जेल में जाएंगे। भारत की सरकार 7,000 करोड़ रुपए हर साल खर्चा करती है जेल चलाने के लिए। कल में मिला था एक जेल के जेलर से, तो बता रहे थे कि हमको कैदियों को खिलाने के लिए पैसा नहीं है, कैसे खिलाएंगे उनको। अमेरिका में 22 लाख लोग जेल के अंदर हैं, जबकि अमेरिका की पॉपुलेशन 30 करोड़ है और इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है और 5 लाख लोग जेल के अंदर है। इसका मतलब समझिए, जेल में जगह ही नहीं है, इसलिए बेल जल्दी मिल जाता है। कहाँ रखेंगे? घर पे ही रहो, वहीं से लड़ोगे, क्योंकि जेल वाला जल्दी निकलेगा तो थोड़ा जगह खाली होगा, तो नए व्यक्ति के लिए रहेगा थोड़ा। ये स्थिति है देश की, बहुत चिंताजनक स्थिति है। साइंस और टेक्नोलॉजी में हम पीछे तो हैं, लेकिन इतना पीछे नहीं है। इंडिया बहुत आगे है और बहुत जल्द आगे हो भी जाएगा, लेकिन कैरेक्टर का एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और भगवान श्री कृष्ण ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमको नहीं बताया, आई एग्री विद दैट, पर गीता का जो ज्ञान दिया वो साइंस और टेक्नोलॉजी से कोई कम इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आचरण से क्या शिक्षा देने आए थे? भगवान श्री कृष्ण हमको सिखाने आए थे कि जीवन में आनंद कैसे आएगा। आनंद, हर व्यक्ति आनंद के लिए सोच रहा है कि कैसे खुशी मिलेगी। हम सोचते हैं कि हम
मिसाइल बना देंगे तो खुशी मिलेगी, हम सोचते हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे तो हमको खुशी मिलेगी। वो जरूरी है, वो जरूरी है। मैं नहीं कहता कि साइंस जरूरी है, बहुत जरूरी है, बट दैट इज नॉट द गोल। दैट इज इम्पोर्टेंट बट नॉट द गोल। जैसे आपको यहाँ से बॉम्बे जाना है, बॉम्बे पहुंचना गोल है, लेकिन बॉम्बे पहुंचने के लिए आप टिकट कटाते हो, फिर आप ट्रेन में जाके बैठते हो, ट्रेन में बैठ के खाना खाते हो, टॉयलेट जाते हो, ये सब जरूरी है। अगर आपको बॉम्बे पहुंचना है तो ट्रेन का टिकट कटाना जरूरी है, ट्रेन में जाके बैठना जरूरी है, बैठ के खाना खाना जरूरी है, टॉयलेट जाना जरूरी है, ये सब जरूरी है, लेकिन ये गोल नहीं है। गोल क्या है? बॉम्बे पहुंचना है। टिकट कटाना गोल नहीं है, वो जरूरी है लेकिन गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है। उसी तरह से ये सारी टेक्नोलॉजी जरूरी है, बट ये लक्ष्य नहीं है जीवन का। लक्ष्य क्या है? ये सारी टेक्नोलॉजी डेवलप करके हम चाहते क्या हैं? हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? What do we want to achieve? We want to achieve happiness, आनंद, खुशी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? खुशी चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। सब कुछ करने के बाद भी अगर शांति, सुख, आनंद ना मिले तो पर्पस इज डिफीटेड। Yes or no? Purpose is defeated. Whatever technological advancement we are doing, अगर हम इससे हम अपने हैप्पीनेस के पैरामीटर को ऊपर नहीं कर पा रहे तो ये सब वेस्ट माना जाएगा। और खुशी कैसे मिलती है? हैप्पीनेस कहाँ से आती है? नॉट बाय टेक्नोलॉजी ओनली। खुशी आती है कैसे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 75 साल रिसर्च हुआ हैप्पीनेस के ऊपर। हैप्पीनेस, ह्यूमन हैप्पीनेस के ऊपर 75 ईयर रिसर्च हुआ कि खुशी आखिर कैसे मिलती है इंसान को। 1940 में ये रिसर्च शुरू हुआ, 1940 में रिसर्च शुरू हुआ, 75 साल तक चला। 2015 में इसका रिपोर्ट आया। 750 लोगों के लाइफ के ऊपर रिसर्च किया गया जब वो बचपन में छोटे थे, और आज के समय में उसमें ज्यादा लोग मर चुके हैं। 750 लोगों के लाइफ के ऊपर रिसर्च किया गया। आधे लोग गरीब थे, आधे लोग अमीर थे। और 75 साल के बाद प्रोफेसर रॉबर्ट वाल्डिंगर, जो इस स्टडी के डायरेक्टर है, अगर आप चाहें तो आप उनका इंटरव्यू पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। क्या कहते हैं? खुशी मिलती है कैसे? हाउ मच मनी यू हैव, उसे खुशी नहीं मिलती। रिसर्च बताता है खुशी मिलती है किससे? प्रेम से। किससे? प्रेम से। अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है, आप खुश नहीं रह सकते। इतनी बात समझने के लिए 75 साल लगे रिसर्च करने में। करोड़ों रुपए खर्चा किया गया, लास्ट में कंक्लूजन क्या है? अरे भाई प्रेम सीखो, प्रेम। भारत में कवि ने कह दिया कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। एक दोहा में उसने सब बता दिया, उसके लिए 75 साल रिसर्च करके तब लास्ट में बोलते वही बात बोल रहे हैं कि प्रेम करना सीखो। नहीं, हम साइंटिफिकली प्रूव करेंगे तब मानेंगे। तो 75 साल तक आप लोग वेट कीजिए, तब तक आपको खुशी नहीं मिलेगी। टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल्स हैं जो शास्त्रों में बताया गया है, उसी को शिक्षा देने के लिए भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पे प्रकट हुए। हमको क्या सिखाने के लिए? प्रेम सिखाने के लिए। क्या सिखाने के लिए? प्रेम कैसे किया जाता है, प्रेम कैसे किया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म से लेके इस संसार के जाने तक पूरा जीवन एक ही चीज की शिक्षा देता है, हाउ टू लव। और यही आनंद का आधार है। उनकी सारी लीलाएं एक ही चीज को बताती है, प्रेम कैसे करना है। रस, जीवन में रस कैसे आता है। 12 प्रकार के रस बताए गए हैं। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस,
रौद्र रस, भयानक रस, वीर रस, हास्य रस, 12 प्रकार के रस बताए गए हैं शास्त्रों में। रस के बिना जीवन क्या हो जाएगा? नीरस। टेक्नोलॉजी में क्या रस है? इंसान अगर उसमें प्रेम ना डाले तो टेक्नोलॉजी अपने आप में थोड़ी ना प्रेम देगा आपको, नहीं देगा। आप AK-47 राइफल बंदर के हाथ में पकड़ा दीजिए, क्या करेगा? देश की रक्षा करेगा? क्या करेगा? न्यूक्लियर बम आप पकड़ा दीजिए बंदर के हाथ में, तो आप न्यूक्लियर बम, लेजर गाइडेड मिसाइल्स बट मिसगाइडेड पीपल, क्या करेंगे? गाइडेड मिसाइल के साथ साथ गाइडेड पीपल both are equally important, yes or no? We are producing guided missile but misguided people, what do you think? ये भगवान श्री कृष्ण का अवतार, बार बार उनकी बातों पे ध्यान देंगे, उनकी लीलाओं को स्मरण करेंगे, तो हम इन सारे उत्सवों के पीछे जो गहरा भाव है, गहरा रहस्य है, उसको जानना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राम, हम विजयदशमी मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? हर साल रावण, कुंभकर्ण, 3 पुतले बनाते हैं और फिर जला देते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। लोग बोलते हैं क्या यार तुम लोग पागल आदमी हो, पैसा अगर ज्यादा हो गया तो ऐसे ही रख के जला दो, पुतला बनाने की क्या जरूरत है? लेकिन क्यों जलाते हैं भाई? कोई नेता करप्शन करता है, कुछ गलत करता है, तो 1-2 साल उसका पुतला जला के फिर लोग भूल जाते हैं। ये 3 लोग कौन है कि इतने सालों से इनका पुतला जला रहे फिर भी भूलते नहीं, अगले साल फिर जलाएंगे। क्या है ये 3 लोग, बताइए क्यों इनका पुतला जलाते हैं? इसके पीछे सिग्निफिकेंस है, ग्रेट सिग्निफिकेंस। ये 3 लोग कौन है? ये 3 लोग GLA कॉलेज के स्टूडेंट हैं। कौन से कॉलेज के? GLA। G मतलब ग्रीड, L मतलब लस्ट एंड A मतलब एंगर। GLA। कुंभकर्ण ग्रीड का प्रतीक है, ग्रीड लोभ। रावण लस्ट का प्रतीक है और मेघनाद एंगर का प्रतीक है। हमने सोचा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद तो मारे गए, क्या सही है? नहीं, रावण आज भी नहीं मरा है, आज भी लोगों के हृदय में बैठा हुआ है लस्ट के रूप में। आज भी हजारों औरतों का बलात्कार होता है भारत में, होता है कि नहीं? पूरे विश्व में होता है, नॉट ओनली इन इंडिया। ये रावण आज भी बैठा हुआ है, ये ग्रीड आज भी बैठा हुआ है, कुंभकर्ण रूपी ग्रीड आज भी सबके हृदय में बैठा हुआ है, जिसके कारण इतने हाई लेवल करप्शन चल रहा है। ये एंगर आज भी बैठा हुआ है, इतना हाई लेवल ऑफ क्राइम इज गोइंग ऑन इन द सोसाइटी ड्यू टू एंगर। तो जब भी इन जलाते हैं, इन 3 लोगों को जलाते हैं, हम बार बार हमको याद दिलाया जाता है कि मारो उस रावण को जो आपके हृदय में बैठा है। ग्रीड, लस्ट एंड एंगर रूपी रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण को मारो। अगर आप चाहते हो कि समाज में शांति और सुख रहे तो केवल टेक्नोलॉजी डेवलप करने से नहीं होगा। आप टेक्नोलॉजी डेवलप करोगे, टेररिस्ट उसका इस्तेमाल करेंगे। So very important to improve the quality of technology, but more important than that is to improve the quality of human being. That is also very important. हम वो तब होगा जब लोग भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की शिक्षाओं को समझेंगे। और ये जो अवसर होते हैं, हमको अवसर मिलता है, एक मौका मिलता है इन सेलिब्रेशन के माध्यम से उन चीजों को याद करने का, स्मरण करने का, कहते हैं ना उसको रीअलाइन करने का, अपने आप को रीअलाइनमेंट। इन बिटवीन अगर हम डाइवर्ट हो गए हैं, डेविएट हो गए हैं, तो फिर से let us bring ourselves on the track again, back on track, है ना? तो ये अवसर हमको मिला है भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के दिन हम याद करें उन वैल्यूज को, उन प्रिंसिपल्स को, जिनको प्रमोट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर प्रकट हुए थे, उनको याद किया जाए और फिर उनके अपने हृदय में उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम उनका जन्मोत्सव मनाएं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच।
और मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया होगा, किसी को बुरा लगा होगा तो क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि बोलने के दौरान पता नहीं रहता क्या निकलेगा मुंह से, है? पर मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। समस्याओं पे चर्चा करने से हम जागरूक बनते हैं, है ना? तो मैं यहीं पे विराम दूंगा और हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी कुछ बताना चाहेंगे, है ना? मैं IIT दिल्ली में 2002 से 2004 2 साल यहाँ पे रहा हूँ, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक किया। तो मैं कुमाऊं हॉस्टल में रहा करता था लगभग 20 साल पहले। तो आई हैव ए डीप सेंटिमेंट्स फॉर IIT दिल्ली। तो आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आज मैं यहाँ पे आया, दोबारा आया यहाँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबकी नीचे आके। मैं आप सबको ऑर्गेनाइजर्स को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मुझे आप बुलाने के लिए। हरे कृष्ण। तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो एक बार प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, जोरदार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो प्रभु जी ने बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही क्रिटिकल चीजों को आप सब लोगों के सामने लेकर आए। और आप जितने भी यहाँ पर भक्त देख रहे हैं, जितने भी यहाँ पर डिवोटीज को देख रहे हैं, इन सब चीज के पीछे प्रभु जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज से जब मुझे याद हो तो मैं 10 वर्ष पहले एज ए स्टूडेंट था, आई वाज अ वेरी ऑर्डिनरी स्टूडेंट, ऐसे ही आम आदमी जैसे होता है, भक्त होता है। उसके बाद फिर प्रभु जी के योगदान से आज मैं लगभग 20,000 बच्चों को UPSC की तैयारी करवाता हूँ। और जितने भी पूरे भारतवर्ष में ऑल इंडिया रैंक 1 IAS IPS और IAS ऑफिसर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं भगवान श्री हरि की कृपा से मेरे पढ़ाई में होते हैं। तो ये सब, और मुझे ये मौका बहुत 10 वर्षों के बाद मिला कि मैं प्रभु जी के साथ रहकर, साथ खड़े होकर इस बात को बताने का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। तो बस जितना भी मैं बोलता हूँ बहुत काम है, तो बस भगवत प्रणाम करूँ। और हमारे इस क्विज में जो विनर्स रहे हैं